Anyone who is on question 1, any of these parts, if anyone is doing, quickly raise your hand if anyone is completing first question. All right. Okay. What we have to do? I'm just waiting for the students to complete this question. Then we will do the next one. And what is the second The question? way, okay. The same way we did question 1. जैसे question 1 में आपने square root find out किया है numbers का. Same method can be applied to decimal numbers. If you have a decimal number, you can find out the square root using the same division method. So I will explain how can we find out the square root. I will explain. There are actually 2 ways you can find out the square root of a decimal number. So one is with the help of prime factorization. The other one is with the help of division method. I will show you both. Exam में अगर सिर्फ square root find करने की instruction है, if the question only tells you to find out the square root, आपकी मर्जी है, आप कोई भी method apply कर सकते हो. लेकिन अगर indicate किया हुआ है कि division method से करना है, तो आपको division method आना चाहिए. For decimal numbers, simple numbers के लिए तो आपको पता चल गया. You all have done so quickly. You didn't even give me time to think. You were answering so quick. So for decimal numbers, exactly like this, just a little bit of change. The rest of the steps are all same. Anyone who's writing down? Just a minute, beta. Just a minute. अब read, beta. आपने कर लिया? Yes, ma'am. Next question, as I already discussed with you, you have to write down how many digits will be there in the square root, but you don't have to perform any calculation. I'm going to put this in the form of a table. The numbers given in the first column, I've got 64. Then I have 144. Third part is And then 4489. Thank you. मैम 64 का 8 होगा मैम 1. मैम उसका क्या मैम? दूसरे का मैम 2 डिजिट. Yes, ma'am. मैम थर्ड का 2 डिजिट. मैम 2 डिजिट. मैम 2 फोर्थ डिजिट. एंड फिफ्थ का 3 डिजिट. And what we want to write down Ma'am, is yes. the number of digits in square root. Digits. मैम I'm saying M in first it is मैम one स्क्वायर digit रूट में number. बता दें. नहीं. मैम वैसे तो मैम फर्स्ट का 8 है, सेकंड का मैम 12. Yes, ma'am. मैम ये ऐसे करना है? Yes. You can directly give the answer also. आप बिना number of pairs बताए directly बता सकते हो. Answer में कितने digits आएंगे. इसमें तो कैलकुलेशन. थर्ड square root find out नहीं करना आपको. Keep in mind you don't have to find out the square root. Third part में 2 pairs, fourth part में 3 pairs, and fifth is 3. 3. मैम यस. मैम अब 1 मिनट वेट कर लो, मैम लिख रही. मैम यस. Just a minute. क्वेश्चन खत्म हो गया सेकंड? हाँ. मैम डन. मैम थर्ड क्वेश्चन क्या है? Question number 3. Please take a look. This is the question that we have. Question number 3, you have to find out the square root of the following decimal numbers. If you have to find out the square root of a decimal number, there are 2 ways you can do this. One, by converting your decimal number into a fraction and then applying prime factorization or any other method of your choice to the numerator and denominator. I will take the first example. I will take the first part. Can we take a decimal into 0? Into 0.
मैम ऐसे लिख मैम नीचे उसके Instead of 10 या 100 decimal, can लिखेंगे। we take a 0 with that number? Like 2560. No, 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 no. You can actually, मैम you इसके नीचे can, 100 लेंगे you ना। can, but it depends if you need that zero. Just let me Okay. explain once and then you can start asking your doubts. So this is the first method. I will be calculating the square root of 2.56 by converting it into a fraction. So 256 over 100. You want to calculate the square root of your numerator and denominator separately. See what I have done. जिस डेसिमल नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, उस डेसिमल नंबर को पॉइंट हटा के फ्रैक्शन बना लो। जब फ्रैक्शन बन गई तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कैलकुलेट कर लो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से कैलकुलेट कर लो, और बाद में आंसर को डेसिमल नंबर बना लो। I will just show you here. 256. I'm going with prime factorization, or you can use मैम division. 16 से होगा ना Division 256। Either Ma'am, prime yes. factorization or division. मैम 256 का हो जाएगा 16 और मैम 100 का 10 हो जाएगा। And can you convert it into a decimal number again? 1.6। And 1.6. मैम यस मैम 1.6 ये आपका 1.6 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। Fine. मैम यस। Now, other way ये is भी easy। the other way is by directly applying division to the decimal number. Kindly watch the screen before you ask any questions. Pay attention. So 2.56 using division. अब इसमें जब आपने डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप वही होगा, आपको पेयर्स बनानी है। लेकिन पेयर्स बनाने के लिए वी विल बी गोइंग अवे फ्रॉम द डेसिमल। जब हमने क्वेश्चन 1 में पेयर्स बनाए थे, हमने वंस प्लेस से स्टार्ट किया था, रिमेंबर लास्ट से स्टार्ट किया था, एंड वी केम टुवर्ड्स द राइट साइड से हम लेफ्ट की तरफ आ रहे थे। यहाँ पे जब आपको पेयर्स बनाने हैं, आपने पॉइंट से दूर जाना है। मैम क्या क्या करना है पॉइंट से? You have to go away from the point. Pair the digits. लेफ्ट राइट साइड जाना है। पॉइंट से दूर, अगर पॉइंट के राइट पे हो तो और राइट पे चले जाओ, अगर आप पॉइंट के लेफ्ट पे हो तो और लेफ्ट पे जाना है। I will show you how. मैम 2 के आगे 0 नहीं आएगा? Yes. 20 हो जाएगा 20। इधर से पेयर बनेगा 56 का, और पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए पेयर बनेगा 2 के साथ 02 का। हम पर 2 तो क्लोज ही रहा डेसिमल। Yes, and why we did this? अगर suppose आपके पास नंबर हो, let us take another number. Let me take 27225. यहाँ पे पॉइंट लगा होता suppose. अब पेयर्स बनाओ। इसमें पेयर्स कैसे बनेंगे? मैम 25 के का साथ एक 0 पेयर लगा बन लेंगे, जाएगा। 2 के साथ 0 लगा पॉइंट देंगे। से और मैम इधर जो और दूसरा 2 है उसके साथ 0 जो बीच में है। नहीं, पॉइंट से दूर जाना है, बिल्कुल पॉइंट के साथ से स्टार्ट करना है और दूर मैम जाना पॉइंट है। से दूर, मैम वो समझ ही नहीं रहा आप क्या कहना क्या बेटा चाह रहे हो। पॉइंट आपका मतलब कि बीच। मैम 5 के आगे 0। यस, मैम 5 के आगे 0 लगेगा। मैम समझ मैम गए। अगर आप कहते कि पॉइंट फिर से भी- दूर जाना तो फिर मैम 2 के आगे 0 आएगा। बेटा आप डेसिमल नंबर के इन बिटवीन कभी भी 0 नहीं लगा सकते। डेसिमल नंबर में अगर आप 0 लगानी है, वो 0 लग सकती है यहाँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग में, यहाँ बिल्कुल लास्ट में। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये चीज आपको छोटी क्लास में बताई जाती है। अगर आपके पास कोई नंबर है, पॉइंट नहीं लगा हुआ, ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल टू जूम आउट ऑफ द स्क्रीन। अगर आपने जूम इन किया हुआ है, जूम आउट करो। अगर आपके पास कोई नंबर है, जस्ट लुक एट योर स्क्रीन। इफ यू हैव 272, सपोज ये नंबर आपको दिया हुआ है, टेल मी विच ऑफ दीज इज करेक्ट। मैंने एक आगे 0 लगाई, एक पीछे 0 लगाई, कौन सा करेक्ट? मैम आगे वाला ये करेक्ट है, ये रॉन्ग मैम है। बिकॉज में पीछे वाले से मैम वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू मैम फिर वो तो 2000 बन जाएगा। करेक्ट। Look at the decimal number now. I'm going to put it in a different way now. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम बोथ मैम आर वैल्यू तो वही मैम both रहेगी, are मैम चाहे correct. जैसे मर्जी कर लो, मैम बोथ आर करेक्ट। क्योंकि थर्ड मैम वन 0 की वैल्यू होती ही नहीं डेसिमल में। अब बताओ।
मैम जो मैम चेंज हो रहेगी। चेंज हो गए। ऊपर वाला ये गलत है। 0 हम इसके अंदर 2.7 वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसमें वैल्यू चेंज हो गई, इसमें वैल्यू चेंज हो गई। रिमेम्बर या तो बिल्कुल ही नॉर्मल आगे लगेगा। नॉर्मल नंबर है, पॉइंट के बिना साथ पॉइंट, अगर वैल्यू डालेंगे वो होगा ही नहीं। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही सीट। अगर बिना पॉइंट वाला नंबर है, इफ योर नंबर इज नॉट अ डेसिमल नंबर, यू कैन पुट द जीरो इन द बिगिनिंग ओनली। अगर आपके नंबर में पॉइंट नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन 1 था जैसे, उसमें अगर आपको जीरो लगाना है, वो जीरो कहाँ लगता है? बिल्कुल शुरुआत में, उससे वैल्यू नहीं चेंज होगी। लेकिन अगर आपके पास डेसिमल नंबर है और उसमें आपको जीरो लगाना है पेयर्स कंप्लीट करने के लिए, तो तो वो पीछे और जीरो आगे। या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लगेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, या फिर बिल्कुल लास्ट में लगेगा। दोनों से ही आपका डेसिमल नंबर जो है की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप चाहे बिल्कुल बिगिनिंग में जीरो लगा दो, इट वैल्यू इज सेम, लास्ट में लगा दो तो भी वैल्यू सेम, बीच मैम में कहीं पे जीरो नहीं लगाना। अब जब आपने पेयर्स बनाने हैं, आप पॉइंट से जब राइट साइड जाओगे, ऑब्जर्व, आप पॉइंट से जब राइट साइड जा रहे हो तो 7 और 2 का पेयर बन गया। मैम यस। अब पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जाओ, हम 0 और 2 का पेयर बन जाएगा। 2 के साथ आपको एक डिजिट चाहिए तो आप जीरो लगाओगे, यहाँ पे इसका पेयर बनेगा। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट। आई नो, इफ दैट इज क्लियर वी विल बी टेकिंग दिस अप टुमारो। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम, बाय मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम जैसे मैम इधर जीरो, मैम आपने कहा कि 2.72 है। मैम अगर 72 के साथ मैम 3 डिजिट्स और लगा दिए मैम, जैसे 7234 और लगा दिए, तो मैम फिर जीरो के साथ मैम जीरो और मैम इधर 2 के साथ तो जीरो लग गया मैम, फिर मैम वो एक पेयर बन गया, तो मैम इधर फिर 2 पेयर बन जाएंगे, 72 और पॉइंट के 32 बाद और 2 पेयर्स बन 34। रहे हैं, पॉइंट के पहले 2 पेयर्स बन रहे मैम पर पेयर तो मैम हमें 2 चाहिए ना। हैं। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है पेयर 2 डिजिट्स, ज्यादा भी बन सकते हैं पेयर्स आपके, ओके मैम। डिपेंडिंग, अगर नंबर बड़ा होगा उसके उतने ज्यादा पेयर्स बनेंगे। अगर 6 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं, ज्यादा पेयर्स बनेंगे, लार्जर नंबर है। ओके मैम। मैम जो आपने फर्स्ट पार्ट कराया मैम उसका आंसर 1.6 है ना? यस, मैम ओके वी मैम, विल बाय कंटिन्यू, मैम। वी विल डिस्कस टुमारो। एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस